Yoga Prana Vidya is an ancient science that has been revived in a new form which is easily adaptable and in tune with our modern day busy life. The environment around us contains a special life force that keeps us alive. This life force is also known as prana. Our body requires constant recharging. This can be done through different means, especially through the transference of prana, that is, the life energy. This is the principle behind Yoga Prana Vidya. The body is capable of healing itself if the body has enough prana. Faster healing is brought about by increasing the prana or energy of the affected part or the whole body. Yoga Prana Vidya thus utilizes the knowledge of this prana in order to better and promote good health. It involves the healing of the invisible pranamaya kosha or the energy body, commonly known as the aura, which interpenetrates and surrounds the visible physical body. The pranamaya kosha contains chakrams and meridians which help in maintaining this body. The energy body is also responsible for our emotions and thoughts. Any changes in the energy body can affect the physical body and vice versa. Yoga Prana Vidya is synonymous with the specialization of the energy body. It can be used to heal common ailments like cold, flu, indigestion, minor aches and pains. In case of chronic ailments like kidney dysfunction, diabetes, hypertension, etc., it can be combined with modern medicine to accelerate the recovery. Preventive healing is one of the advantageous factors of this system. By practicing the techniques of Yoga Prana Vidya, you can feel healthier, happier, peaceful, with better interpersonal skills, better memory, concentration, and a tremendous feeling of self-empowerment and self-worth. That's not all. Through Yoga Prana Vidya, you can have a deeper understanding of the higher self. The concepts of interconnectedness and oneness become clearer. Yoga Prana Vidya, the bridge to spirituality. सभी को आज नमस्ते। मेरा नाम अमित जैन है। मैं गुवाहाटी में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हूँ। कुछ समय पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरे लेफ्ट नी में मुझे काफ़ी चोट आई थी और मेरा लिगामेंट रप्चर हुआ था और डॉक्टर्स ने मुझे सलाह दी थी कि आपको ऑपरेशन ही कराना होगा, यही इसका एकमात्र उपचार है, वरना आपको हमेशा चलने फिरने में परेशानी आएगी। तब मैंने इस चीज़ पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ऑपरेशन नहीं कराया और धीरे धीरे करके मेरा पैर काफ़ी कमज़ोर रहा, लेकिन मैं चल पा रहा था। इस बीच में मेरा वज़न भी काफ़ी बढ़ गया था। मैं लगभग 115 किलो का हो गया था और मुझे हाइपरटेंशन और इसके अलावा जॉइंट्स पेन का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया था। जब मैं गुवाहाटी आया तो मैंने वज़न कम करने के लिए सुबह से वॉक और थोड़ा सा रनिंग स्टार्ट किया, जिसकी वजह से मेरे नीज़ में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। लेफ़्ट नी तो पहले से ही अफेक्टेड था, राइट नी में भी बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गया बिकॉज ऑफ एक्सेस वेट, और मेरे दोनों हाथों में भी एक अजीब सी चुभन आती थी, शायद एक्सेस फैट हो या कोई भी हो, और मुझे हाइपरटेंशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसके अलावा मुझे ना लंग्स में हमेशा कफ का एक प्रॉब्लम रहता था, वो मुझे बचपन से ही है। हालत काफ़ी
ख़राब हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मैं डॉक्टर्स की दवा ले रहा हूँ, कंटिन्यूस ले रहा हूँ, उस समय तक ले रहा हूँ जब तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर एक दिन मेरी वाइफ, जो कि YPB से जुड़ी हैं, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था इन सब चीज़ों पे, उन्होंने मुझसे बोला कि आप इतना सब कुछ कर रहे हैं तो क्यों ना एक बार आप हीलिंग पे भी फोकस करें। तो मैं कुछ समय तक इस चीज़ को इग्नोर करता रहा, सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब कोई उपाय नहीं दिखा, ये लगा कि अब पैर का ऑपरेशन ही होगा। लेकिन अब दोनों पैरों की बात आ गई थी, हाथों में भी दर्द हो रहा है, हाइपरटेंशन भी हो रहा है, वेट भी बढ़ा हुआ है, सब कुछ है। तो मुझे लगा कि ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा। तो उन्होंने मेरी हीलिंग शुरू की। तकरीबन 2 से 3 महीने में ही हीलिंग शुरू करने के बाद मुझे पूरे रिजल्ट मिल गए, जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। शुरुआत हुई मेरे माइंड चेंज से, दिमाग से, विल पावर से, जो कि स्ट्रेंथन हुई। मेरे सोचने का एक नज़रिया बदला। मैंने धीरे धीरे चलना शुरू किया। पैरों में जो एक दर्द का एहसास हो रहा था वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हुआ। मैं दोनों पैरों में नी पैड पहनता था, हाथों में भी पहनता था। टेनिस एल्बो की शिकायत भी, जो मैं बोल रहा हूँ कि चुभन हो रही थी, वो डॉक्टर ने बोला कि टेनिस एल्बो हो गया है आपको क्योंकि कंप्यूटर पे बैठे बैठे दिन भर काम करना पड़ता है। आज लगभग 2 से 3 महीने बाद मेरा वजन भी कम से कम 15 से 17 किलो कम हो गया है। हाइपरटेंशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट नी पूरी तरह से ठीक हो गया है। अब मैं उसमें कोई नी पैड नहीं पहन रहा हूँ। दोनों हाथों में कोई भी टेनिस एल्बो से रिलेटेड कोई भी पैड नहीं पहन रहा हूँ। और एक खुशी, अजीब सा एक माहौल, एक एन्जॉयमेंट, क्रेजीनेस बॉडी में आ गया है, जिससे एक बहुत ही अच्छा महसूस होता है। सो इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा। सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। मेरा नाम निधि है। मेरे पापा का नाम रविंद्र अग्रवाल है, जो कि कोरोना वायरस से लड़कर घर लौट चुके हैं। फाइनली वो एक कोरोना विनर हैं। बट इस सब का श्रेय मैं पूरा योगा प्राणायाम विद्या ग्रुप को देना चाहूँगी, स्पेशली उमा जी, गीतांजलि जी, जिन्होंने मेरे पापा के लिए बहुत सारी हीलिंग करी, मेडिटेशंस करी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजी, जिस वजह से ही वो ठीक हो पाए। जैसे कि जब मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे, उन्हें बहुत सारी वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। उनका फीवर 103, 104 से नीचे नहीं आ रहा था। उनको बहुत ज़्यादा लूज मोशंस लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील करते थे, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ वो फील करते थे, बहुत ही लो फील करने लगे थे, और कई बार तो वो बहुत नेगेटिव भी फील करते थे। तो ये सब जितनी भी प्रॉब्लम्स आती थी, मैं सिर्फ उमा जी और गीतांजलि जी को अपडेट दिया करती थी, और फिर वो अपने ग्रुप के साथ, योगा प्राणायाम विद्या ग्रुप का जितना भी एंटायर ग्रुप है, मेरे पापा के लिए हीलिंग किया करते थे। जैसे कि जब मैं उन्हें बोला करती थी कि मेरे पापा को लूज मोशंस लगे हुए हैं, तो उनके स्टमक की और नेवल की हीलिंग करते थे। जब मैं बोलती थी कि वो बहुत लो फील कर रहे हैं और नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो वो एनर्जाइज फील करें और पॉजिटिव फील करें, वो उस चीज़ की हीलिंग किया करते थे। और रियली गाइज, इट वर्क फॉर मी, फॉर माई फादर। योगा प्राणायाम विद्या ग्रुप, आई वुड लाइक टू से दैट यू पीपल आर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड। जो कि जब अब कोरोना वायरस से पूरा देश लड़ रहा है, आप लोग जो इतनी उनके लिए हीलिंग्स कर रहे हैं डेली बेसिस पे, you people are doing such a wonderful job. Thanks a lot. And before I would like to end, मेरे पापा आप लोगों से 2 शब्द कहना चाहेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र अग्रवाल है। मैं योगा प्राणायाम विद्या ग्रुप का धन्यवाद करता हूं, स्पेशली उमा जी एंड गीतांजलि जी, जिन्होंने मुझे मेडिटेशन थ्रू वेरियस थेरेपी हेल्प की। इस कोरोना से लड़ने में मैं एक एनर्जी एंड पॉजिटिव फील करता था आफ्टर दिस थेरेपी। एक बार फिर से मैं योगा प्राणायाम विद्या ग्रुप का और सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे इस महामारी जैसी बीमारी से बाहर आने में मदद करी, और अब मैं खुद भी ये मेडिटेशन करता हूं। धन्यवाद। हाय दोस्तों, मेरा नाम अर्चना है।
मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ जो कि फरवरी तक के DLDAV स्कूल में वर्क कर रही थी, पर अचानक से कुछ महीनों पहले मुझे स्पाइनल बल्जिस का प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से मेरी जो मोटर मूवमेंट्स थी वो काफ़ी अफेक्ट हो गई थी। मेरा बोलना, मेरा उठना, चलना, ब्रीदिंग करना, इन सब की वजह से मुझे बॉडी में इतना पेन रहने लगा था कि मेरा जो सिटिंग स्पैन था वो डिक्रीज़ होके 5-10 मिनट्स हो गया था, और 5-10 मिनट बैठना, वो भी सपोर्ट के साथ भी, पूरे दिन को अफेक्ट करके जाता था। अगले पूरे 2-3 दिन तक बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। एंड देन आई कॉन्टैक्टेड मिस मेघा, जो कि YPV ट्रेनर हैं, और योगा प्राणा विद्या उन्होंने मुझे सजेस्ट करा हीलिंग, और अप्रैल के स्टार्टिंग वीक से उन्होंने मुझे हील करना शुरू करा। अभी ये वीडियो मैं बना रही हूँ तो हीलिंग को होते हुए लगभग 6 हफ्ते हो गए हैं, और इन 6 हफ्तों में मेरा जो सिटिंग स्पैम है वो 5-10 मिनट से बढ़ कर के अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स हो गया है। यानी कि अब मैं 2 घंटे अपनी एक्टिविटीज़ को और बाकी सारी चीज़ों को कर पा रही होती हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे काम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे उसकी वजह से। थैंक्स टू मिस मेघा एंड योगा प्राणा विद्या, जिसकी वजह से मैं कह सकती हूँ मैं रिवाइव कर पाई, उस इतने ख़तरनाक पेन से उबर पाई। सो थैंक यू सो मच, इट वॉज़ अ वेरी वेरी गुड सेशन। एंड ये मैं सजेस्ट करूँगी कि किसी भी तरीके की किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बार ज़रूर वो योगा प्राणा विद्या हीलिंग के लिए सजेशंस लें। और इसके अंदर पूरे प्रोफेशनल लोग थे, ऐसा नहीं था कि कोई एक ट्रेनर था या फिर जिसको नहीं पता। इसमें डॉक्टर्स की टीम भी शामिल थी। सो मैं उन सब जो ऑर्थोपेडिक्स थे उनका, और बाकी फिजियोथेरेपिस्ट जिन्होंने मुझे वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के थ्रू टाइम टू टाइम गाइड किया, मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ। और आत्म नमस्ते। Hello, I am Ashwini Mehta from Burhanpur, Madhya Pradesh. I was detected corona positive few days ago, but अभी मैं पूरी तरह रिकवर हूँ। एक्चुअली मुझे अपना योगा प्राणा विद्या का एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। इसके बारे में मुझे दिव्या जैन से पता चला था, और फिर जब हम पॉजिटिव थे, जब कोरोना के लिए पॉजिटिव थे और हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उसके बाद मेरी उनसे बात स्टार्ट हुई। उन्होंने डेली मुझसे अपडेट लेना शुरू किया। तो मुझे बहुत ज़्यादा थ्रोट इन्फेक्शन था, तो मैंने उनको बताया कि मुझे बहुत थ्रोट इन्फेक्शन है, आप कुछ करो। तो उन्होंने मुझे इस हीलिंग के बारे में बताया, तो मेरी हीलिंग स्टार्ट हुई। तो जब मेरी हीलिंग होती थी उसके कुछ देर बाद ही मुझे टोटली कम्प्लीटली ठीक लगने लगता था। फिर मेरे साथ मेरे और 3 फैमिली मेम्बर्स भी एडमिट थे, तो उनको जो सिम्टम्स लगते थे मैं उनको उस बारे में बताते गई, तो वो लोग भी ठीक होते चले गए। फिर हमने रिदमिक ब्रीदिंग करना शुरू किया शाम में, तो उससे हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ गई, और हम लोग लिटरली आई थिंक ये हीलिंग की हेल्प से हम लोग एसिम्टोमेटिक हो गए। फिर मुझे लास्ट डे फिर से थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ। मैंने तुरंत उन्हें बताया और उन्होंने कहा कि आपकी 3 बार हीलिंग हुई है। लिटरली मेरा थ्रोट इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक हो गया। आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया और मेरे फैमिली मेम्बर्स की हीलिंग करवाई, मेरी हीलिंग करवाई, और हम लोगों की रिपोर्ट भी पूरी नेगेटिव आ गई और हम लोग अच्छे से रिकवर हो गए। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी हमारे लिए हीलिंग करी है। थैंक यू। नमस्कार, मैं अनुपमा समाधिया आपसे अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैं और मेरे परिवार के 5-6 सदस्य हम लोग कोरोना पॉजिटिव थे और अरविंदो में हमारा उपचार चल रहा था। तभी मेरी परिचिता मनीषा जी के द्वारा मेरा मुलाकात विशाखा जी से हुई और उन्होंने मुझे ऊर्जा उपचार विधि के बारे में बताया, और उन्होंने तथा उनके बेंगलुरु स्थित आश्रम के द्वारा भी हमारे दिन में 2-3 बार ऊर्जा उपचार विधि से उपचार किया गया तथा हमारे लिए प्रार्थनाएं की गई, जिसका हम लोगों पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे हम ठीक महसूस करने लगे। 29 अप्रैल को मैं और मेरे परिवार के कुछ सदस्यों की छुट्टी हो गई। मेरी ननंद
जो कि आईसीयू में थी उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। धीरे धीरे उनके ऑक्सीजन भी हटा ली गई और अब ननद भी स्वस्थ है और कल उनको भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। मैं योग प्राण विद्या की विशाखा जी, मनीषा जी और बाकी सभी टीम के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके कारण आज हम स्वस्थ हैं और अपने घर में आ गए हैं। मेरा नाम सुशील परमार है और मैं 4 मई को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद मुझे आरडी गार्डी हॉस्पिटल उज्जैन में एडमिट किया गया था। उसके बाद 8 तारीख को अरविंदो हॉस्पिटल इंदौर में रेफ़र किया गया, जहां से मैं 16 मई को डिस्चार्ज हो गया हूं स्वस्थ होकर। और इस दौरान मेरा उपचार योग प्राण विद्या की हीलिंग द्वारा विशाखा मैडम श्रीवास्तव सर एवं श्रीवास्तव मैडम द्वारा किया गया। रोज़ मुझसे फीडबैक लिया गया और उस फीडबैक के अनुसार मुझे ट्रीटमेंट दिया गया और मुझे ब्रीदिंग के बारे में बताया गया था। मेरे द्वारा हॉस्पिटल में रोज़ 4 बार ब्रीदिंग की गई है, जिसके कारण से मेरी रिकवरी अन्य मरीजों की अपेक्षा फास्ट हुई है। और रोज़ मेरे द्वारा फॉरगिवनेस की गई, जिससे मेरे नेगेटिव थिंकिंग में कमी आई है और स्ट्रेस भी कम हुआ है। और जय माता दी, जय झूलेलाल। जय माता दी, जय झूलेलाल। मां रायपुर में राष्ट्रीय सिंधु मंच में राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सपना कुकरेजा तव्हां रूबरू थी रही है। अज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ते योग प्राण विद्या जेकी रायपुर जी असांजी संस्था है उन सां मिली करे योगा डे दिवस मल्हाइण लाइ असांजी कोशिश है कोरोना में जेके माण्हू मानसिक ऐं तनावग्रस्त आहिनि उनखे कीअं माइंड सां रिलैक्स कयो वञे ऐं उन्हनि खे कोशिश की रहिया आहियूं। असांजी ही विशाखा करनानी इंदौर में स्पेशल ट्रेनर आहिनि जेके असांखे तनाव मुक्त ऐं टेंशन सां वाक़िफ़ कराईंदा। ऐं अन्विता भट्ट आहे नागपुर मां, पारूला रायपुर मां ऐं मीना पिंजानी असांजी सह संयोजक आहे, उहा बि रायपुर मां। जय झूलेलाल, नमस्कार। योग प्राण विद्या रायपुर आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रीय सिंधी मंच से स्वागत करता है। आज राष्ट्रीय सिंधी मंच ने सोशल सर्विस और सोशल हेल्थ को लेकर योग दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम आशा करते हैं कि योग प्राण विद्या की तकनीकें आपकी सोशल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को ठीक करने में और इम्प्रूव करने में सहायक रहेंगी। मैं बताना चाहूंगी कि योग प्राण विद्या, हम इसमें प्राण विद्या मतलब ऊर्जा की तकनीकों की जानकारी और अभ्यास करवाते हैं। हमारे संस्थापक श्री NG रेड्डी IIT दिल्ली से हैं और इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड विंग कमांडर रहे हैं और पिछले 22 सालों से इस सिस्टम में इन्वॉल्व है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो योगाभ्यास होता है वो हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए होता है, लेकिन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि व्हाट इज हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है। अगर एक पर्सन फिजिकली फिट है, उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो उसे हेल्थ नहीं कहेंगे। हमको फिजिकल फिटनेस के साथ साथ इमोशनल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और सोशल वेलबींग मतलब व्यक्ति शरीर के साथ साथ मानसिक, भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो और सामाजिक खुशहाली भी हो, तभी वो व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। और योग प्राण विद्या में जो तकनीकों का अभ्यास करवाया जाता है वो हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से संबंधित रहती है। जैसे कि हम जानते हैं लॉकडाउन खुल गया है और उसके बाद भी अभी लोग डरे हुए हैं, तनाव में है। जो पर्सन मान लीजिए पॉजिटिव है अगर कोई, वो तो डर में है ही है, जो क्वारंटाइन है वो भी डर में है और जो लोग आसपास रहते हैं, उस शहर में रहते हैं ऐसे लोगों के, तो वो भी डर में है कि अब क्या होगा। हर किसी के मन में डर है। हम कितना भी मास्क यूज कर लें, सैनिटाइज कर लें, अपनी डाइट पर ध्यान दें, लेकिन हमको अपने इमोशंस पर, स्ट्रेस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी इम्यूनिटी को डाउन करती है। योग में सिर्फ योगासन और प्राणायाम नहीं है, योग में इसके आगे भी बहुत कुछ है। ये जानकारी देने के लिए
हमारी सीनियर मोस्ट ट्रेनर विशाखा करनानी जी इंदौर से इस सेशन में ज्वाइन हो रही है। हम राष्ट्रीय सिंधी मंच से और योग प्राण विद्या रायपुर की तरफ से विशाखा मैम का हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम मैम। नमस्ते। आज इंटरनेशनल योगा डे है, सो इसीलिए हम थोड़ा योगा के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा और जानकारी प्राप्त करेंगे। आमतौर पर जो योगा शब्द से हम समझते हैं ये कि योगासन, मॉर्निंग में उठकर हम सब योगासन करें, बॉडी को फिट रखें। एंड आज का जो समय चल रहा है कोविड-19 को लेकर, निश्चित तौर पर घर घर में सभी लोग थोड़ा इम्यूनिटी को लेकर ज्यादा प्रैक्टिस करने लगे हैं योगासन। बहुत सारे लोग योगा यूट्यूब में देखकर, फेसबुक में देखकर बहुत सारे ये सब प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो हम इसके बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो योगा अकॉर्डिंग टू पतंजलि, अष्टांग योगा यानी कि योगासन डेफिनेटली वो एक उसका एक हिस्सा है, प्राणायाम वो भी एक हिस्सा है। अब प्राणायाम भी तरह तरह के होते हैं। सिंपल एक प्राणायाम होता है, एक अलग अलग मकसद होता है, तरह तरह के प्राणायाम होते हैं। तो योगासन, प्राणायाम, उसके बाद यम और नियम, डूज एंड डोंट्स, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, चरित्र का निर्माण कैसे करें, इन सब चीजों को फॉलो करके अपने गुणों को कैसे हम बढ़ाएं और जो हमारी वीकनेसेस है कैसे हम उसको अपने अंदर से हटाएं और एक अच्छे चरित्र का निर्माण करें। सो यम एंड नियम। उसके बाद आता है प्रतिहारा। प्रतिहारा यानी कैसे हम रिस्ट्रेन करें अपने आप को, उसमें से बाहर निकालें, कुछ चीजों से कैसे हम डी अटैच करें। अगर हमको जीवन में आगे बढ़ना है तो जो अभी की परिस्थिति है उसमें से बाहर आके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कैसे हम आज के चीजों से लेट गो करेंगे तो ही हम कल पर पैर रख पाएंगे। जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं, आप एक कदम इधर रखते हैं, अब यहाँ का जो कदम है आप छोड़ के तभी आप आगे बढ़ सकते हो, फिर यहाँ के जगह को छोड़कर ही आप ये कदम आगे बढ़ा सकते हो। तो इसी को बोलते हैं प्रतिहारा। तो अगर हम सिचुएशन को पकड़ के रखेंगे तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है लाइफ में, इसी को प्रतिहारा बोलते हैं। उसके बाद आता है धारणा और ध्यान। धारणा मतलब कंसंट्रेशन, यानी कि विल पावर को बढ़ाना, और ध्यान मतलब होता है अवेयरनेस, यानी जागरूकता बढ़ाना, यानी कि अपने हार्ट, यानी कि सेंसिटिव बनना। जब तक हम सेंसिटिव नहीं बनते हैं तब तक दूसरों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है, क्योंकि हम ये समझते हैं जो हम सोच रहे हैं वो सही है, मुझे सब पता है। ये होता है डिल्यूजन, यानी कि भ्रम। जब हम ध्यान यानी अवेयरनेस को डेवलप करते हैं तब हम जागरूक होते हैं अपने सराउंडिंग्स के प्रति, दूसरों के प्रति थोड़ा सा एम्पैथी रखना सीखते हैं, उनके प्रति हमको करुणा और कंपैशन भी होता है, तो हम उनके नजरिया से भी देखना शुरू करते हैं। एंड लास्टली हम आते हैं समाधि। समाधि यानी एकत्व हासिल करना। अब एकत्व किससे हासिल करना? समाधि यानी कि यूनियन। तो किसका यूनियन? तो जीवात्मा का आत्मा से यूनियन। अगर हम एक आम इंसान की बात करें तो जो जिस स्तर में है उससे हायर यूनियन, जीवात्मा का आत्मा से और आत्मा का परमात्मा से, और इसी को हम बोलते हैं योगा। योगा जो है एक संस्कृत शब्द है, यजुर से आता है, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है एकत्व हासिल करना, यानी यूनियन विद द हायर। अब ये अलग अलग टेक्निक्स हैं कैसे हम इस एकत्व को हासिल, बहुत सारे टेक्निक्स है। भक्ति योगा है। भक्ति योगा यानी कि हमारे अंदर प्रेम तत्व का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। राज योगा है। राज योगा यानी कि हमारे अंदर इच्छा शक्ति, विल पावर का डेवलपमेंट होता है। कुंडलिनी योगा है जिसके अंतर्गत हमारे नर्वस सिस्टम, ब्रेन, हमारा जो शरीर है, आप ऐसा समझ लो कि ये जो शरीर है ये कैसे अपग्रेड होगा, ये है कुंडलिनी योगा। फिर उसके बाद में आता है ध्यान योगा। तो ध्यान योगा जैसे कि अभी आपको शब्द बताया ही था, ध्यान मतलब अवेयरनेस, कैसे हमारे अंदर अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ेगा,
एक्सटेंडेड अवेयरनेस और ज्यादा जागरूकता बढ़ेगा जब हम ध्यान करते हैं। तो ध्यान एक्चुअली हम नॉर्मल तौर पे हम ध्यान यानी मेडिटेशन समझते हैं, केवल मेडिटेशन मतलब ध्यान। एक्चुअली मेडिटेशन मतलब ध्यान एंड धारणा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी होता है और अवेयरनेस भी होता है, दोनों मिलकर एक्चुअली मेडिटेशन के अंदर होता है। उसके बाद कर्म योगा। कर्म योगा क्या है? जो हम सेवा करते हैं उसको हम कर्म बोलते हैं, श्रम दान करते हैं उसको हम कर्म बोलते हैं, जिससे कि हम अच्छा कर्म बनाते हैं। कर्म योगा दूसरों की सेवा करना। आज कोविड-19 के समय में बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह के से सेवा कर रहे हैं, ये कर्म योग है। इसके बाद हम आते हैं ज्ञान योगा, जो कि बहुत जरूरी है यदि हमको आगे बढ़ना है तो, क्योंकि ज्ञान यानी कि नॉलेज। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर हमको नॉलेज होता है तो उसको सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के लिए हम तत्पर रहते हैं, हम मन से आगे बढ़ते हैं, हमको डाउट नहीं होता है। यदि कोई चीज की समझ हो जाती है, उसको हम ग्रैस्प कर लेते हैं, तो फिर उस सब्जेक्ट मैटर को हम डाउट नहीं करते हैं और हम शीघ्र उस पर हम आगे बढ़ते हैं। सो योगा एक्चुअली तरह तरह के टेक्निक्स है जिससे कि हम योगा या यूनियन हासिल कर सकते हैं अपने जीवात्मा का आत्मा से, और अगर देखा जाए आगे आत्मा का परमात्मा से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जो हमारा योग प्राण विद्या सिस्टम है, इसके अंतर्गत ये सारी टेक्निक्स शामिल हैं। हम इन सारे तरह तरह के जो टेक्निक्स है हम सबकी प्रैक्टिस करते हैं, और इतना ही नहीं, हम उपचार पद्धति भी प्रैक्टिस करते हैं। और उपचार पद्धति जो कि हमारे सिर्फ इस फिजिकल बॉडी पर ही उपचार नहीं आधारित है, ये हमारे मनोवैज्ञानिक या जिसको हम साइकोसोमैटिक बोलते हैं, तो सारे साइकोसोमैटिक डिजीजेस के लिए भी हम उपचार करते हैं। इसके बारे में आगे हम और चर्चा करेंगे, और जैसे हमने बोला यम नियमा और प्रतिहारा, ये इन सब चीजों के बारे में हमने जो अभी बात करी उसके लिए हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे। कैसे हम प्रतिहारा प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने जीवन में, कैसे हम चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू मैम, बहुत ही सुंदर जानकारी देने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और अपनी भावनात्मक संतुलन के लिए एक प्रैक्टिस करवाने के लिए हमारे साथ ज्वाइन हो रही है हमारी ट्रेनर जी, जो कि रायपुर से है। नमस्ते। आज के इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमें जरूरत है कि हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएं, न केवल आज के लिए बल्कि आने वाले कल के लिए भी। ये जो वायरस है ये सबसे ज्यादा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसीलिए हमें जरूरत है कि हम अपने लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करें। तो योग प्राण विद्या में एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जिसे हम कहते हैं रिदमिक योगिक ब्रीदिंग, यानी लयबद्ध योगिक श्वासन। ये एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे हम रिदम पर करते हैं। तो आमतौर पे बहुत सारे लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम वगैरह करते हैं, बट रिदमिक योगिक ब्रीदिंग इन सबसे अलग इसलिए है क्योंकि इस पे हम रिदम का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण न केवल फिजिकल लेवल पे बल्कि इमोशनल लेवल पे भी हमें बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हम पहले फिजिकल बेनिफिट्स की बात करते हैं। जब हम रिदमिक योगिक ब्रीदिंग करते हैं, हम अपने लंग कैपेसिटी को 60 to 70% तक इंक्रीज करते हैं, जो कि आमतौर पर हम सिर्फ 15 to 20% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। जब हमारी लंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव होते हैं और हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाइड होती है। तो इसके दौरान हमारे बॉडी में जितने भी इंटरनल सिस्टम्स होते हैं वो इंप्रूव करते हैं और अल्टीमेटली हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इंप्रूव करता है। तो अब हम बात करते हैं इमोशनल लेवल पे रिदमिक योगिक ब्रीदिंग हमें किस तरीके से मदद करता है। जब कभी हम इमोशनली लो फील कर रहे हो या बहुत स्ट्रेस पे हो, यदि उस समय हम रिदमिक योगिक ब्रीदिंग का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे रिदमिक योगिक ब्रीदिंग हमारे इमोशंस को रेगुलेट करेगा, जिसके कारण हमारे अंदर कामनेस और पीस पैदा होता है।
यानी कि जो भी तरह की हड़बड़ाहट या पैनिक रिएक्शन या जो भी स्ट्रेस लेवल होता है हमारा, उसे डिक्रीज करता है और अल्टीमेटली हम पीसफुल फील करते हैं। तो आइए आज हम रिदमिक योगिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे हम रिदम पर करते हैं। इसका रिदम है 6-3-6-3, यानी कि 6 काउंट तक हम इनहेल करेंगे, श्वास लेंगे, 3 काउंट तक हम उसे होल्ड करेंगे, रोक कर रखेंगे, 6 काउंट तक हम एक्सेल करेंगे, श्वास छोड़ेंगे और 3 काउंट तक हम उसे होल्ड करके रखेंगे। तो इस ब्रीदिंग प्रैक्टिस के दौरान हम अपनी टंग को पैलेट पर रखेंगे, यानी कि जीभ को तालू पर रखेंगे, कुछ इस तरीके से। और आप कंफर्टेबली अपना मुंह बंद कर सकते हैं। हमारा बैक स्ट्रेट रहेगा और हम इसमें शोल्डर मूवमेंट नहीं करते हैं और हम इसमें चेस्ट मूवमेंट नहीं करते हैं। इस पूरे ब्रीदिंग के दौरान हम पेट से श्वास लेते हैं और पेट से श्वास छोड़ते हैं। तो एक बार हम इसे प्रैक्टिस करते हैं अभी बिना रिदम के, और उसके बाद हम इसे ऑडियो के साथ, रिदम के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे इसे। हम एक हाथ अपना नाभि पे रखेंगे, हम अपने जीभ को तालू पर रखेंगे और एक हाथ अपना नाभि पे रखेंगे। जब हम इनहेल करेंगे हमारा पेट बाहर की ओर आएगा, उसके बाद हम उसे रोकेंगे, 3 काउंट तक हम उसे रोकेंगे। उसके बाद हम जब श्वास छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर की ओर आएगा और उसे हम वापस से 3 काउंट तक रोक के रखेंगे। तो हम अभी करके देखते हैं। श्वास ले, 1 2 3 4 5 6, होल्ड होल्ड होल्ड, 1 2 3 4 5 6, होल्ड होल्ड होल्ड, 1 2, पेट बाहर की ओर, 4 5 6, होल्ड होल्ड होल्ड, पेट अंदर की ओर, 1 2 3 4 5 6, होल्ड होल्ड होल्ड। एक और बार प्रैक्टिस करेंगे। पेट बाहर की ओर, 1 2 3 4 5 6, होल्ड होल्ड होल्ड, सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर की ओर, 1 2 3 4 5 6, होल्ड होल्ड होल्ड। अब हम इसे ऑडियो के साथ प्रैक्टिस करेंगे। भीतर करें, रुके। अब हम लयबद्ध श्वसन प्रक्रिया शुरू करते हैं। सांस ले, हम सांस लेंगे, 2 3 4 5 6, रुके, होल्ड होल्ड होल्ड, सांस छोड़े, 1 2 3 4 5 6, रुके, होल्ड होल्ड होल्ड, प्रक्रिया जारी रखें। 1 2 3 4 5 6, होल्ड होल्ड होल्ड, 1 2, पेट अंदर की ओर, 4 5 6, होल्ड होल्ड होल्ड, पेट बाहर की ओर, 2 3 4 5 6, होल्ड होल्ड होल्ड, पेट अंदर, 2 3 4 5 6, होल्ड होल्ड होल्ड, पेट बाहर, 1 2 3 4 5 6, होल्ड होल्ड होल्ड, पेट अंदर, 1 2 3 4 5 6, होल्ड होल्ड होल्ड, 1, पेट बाहर, 2 3 4 5 6, होल्ड होल्ड होल्ड, 1 2 3 4 5 6, होल्ड होल्ड होल्ड। तो इस तरीके से हम रिदमिक योगिक ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करेंगे। हम इसे दिन में 3 बार कर सकते हैं और अभी का जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसमें हम दिन में 4 से 5 बार भी इस ब्रीदिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ब्रीदिंग हमारे YPV साधना ऐप में अवेलेबल है
और आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू पारुल जी। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि ऐसा रिदम पे भी कुछ होता है। ऐसा तो हमने पहली बार देखा है। रिदम का ब्रीदिंग बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है, कुछ लाइट फील हो रहा है, यहाँ कमेंट आ रहे हैं। अब हम अपनी अगली प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिनके साथ रहते हैं वही लोग हमारे क्रोध और तनाव और नाराजगी का कारण भी होते हैं। हमको इसका क्या सॉल्यूशन है, ये बताने के लिए हमारे साथ नागपुर से हमारी ट्रेनर ज्वाइन हो रही है, अन्विता भट्ट मैम, जो कि विदर्भ और छत्तीसगढ़ की सीनियर ट्रेनर है। हम उनका स्वागत करते हैं राष्ट्रीय सिंधी मंच से और योग प्राण विद्या रायपुर की तरफ से। अन्विता भट्ट जी। आत्मा नमस्ते। थैंक यू मीना जी। शारीरिक और भावनात्मक संतुलन के लिए अब हम अपना दूसरा अभ्यास करने जा रहे हैं, जो कि क्षमा साधना है। हम देखते हैं कि हर व्यक्ति के मन में लोअर इमोशंस जैसे एंगर, स्ट्रेस, हर्ट ये रहते हैं। ये सभी के जीवन में होता है, ये बड़ा कॉमन है। अब प्रश्न ये उठता है कि आज हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमारे इमोशंस और हमारी इम्यूनिटी इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन है। जब हम नियमित क्षमा साधना का अभ्यास करते हैं तो ना कि खाली हमारे रिलेशन बेहतर और मधुर होते हैं, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। हमारे फिजिकल प्रॉब्लम का डायरेक्टली कनेक्शन हमारे स्ट्रेस से हो सकता है। जैसे हम कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हम बताते हैं कि हमको ये इश्यू है, तो डॉक्टर कई बार प्रश्न करते हैं हमसे, क्या आप स्ट्रेस ले रहे हैं? तो उससे हम ये पता चलता है कि हमारा जो भी फिजिकल इश्यू है वो हो सकता है कि हमारे स्ट्रेस से या हमारे लोअर इमोशन से कनेक्टेड, या हम कह सकते हैं कि हमारे भावनात्मक शरीर से उसका कनेक्शन रहता है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि हम क्षमा साधना का जब हम नियमित अभ्यास करते हैं तो हमारा फिजिकल और इमोशनल दोनों लेवल पर बैलेंसिंग स्टार्ट हो जाता है। और हम नियमित अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली 90% तक हमारे इमोशंस को हम बेहतर कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो आप लोग सब तैयार हैं इस क्षमा साधना के लिए? चलिए आज हम इस पावरफुल टेक्निक को हम सभी इस ग्रुप में करते हैं और अपने इमोशंस को बैलेंस करने में हम अपने आप को एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक आज हम अपने आप को देने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि ये थेरेपेटिक है। जो क्षमा साधना है एक्चुअली में ये थेरेपेटिक है। इससे अपने आप में ही जब हम करते हैं तुरंत आपको रिलैक्स लगता है और अपना उपचार हो जाता है। अब बोलते हैं कि क्षमा करना जो है ये स्मार्ट थिंग है। अब हमको ये सोचे कि हमको ये करना ही चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करें। इसके करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि हम कैसे करेंगे। तो ये 3 चरणों में है। पहले चरण में क्या है? पहले चरण में हम उनको माफ करेंगे जिनके द्वारा हमको हर्ट पहुंचा है या जिसके द्वारा हम जो है इंसल्ट फील हुआ है, जो भी हमको तकलीफ इमोशनली हमको तकलीफ पहुंची है। तो सबसे पहले हम उसको माफ करेंगे, तहे दिल से माफ करेंगे। हमको इसमें एक ये खूबसूरती है कि हमको किसी के पास जाना नहीं है या हमको ऐसे उनके सामने जाकर कुछ वो नहीं करना है। ये एनर्जी है, क्योंकि हमारा सिस्टम एनर्जी पे बेस्ड है। तो ये एनर्जी है, ये एनर्जी की जो लिंक बनती जाती है, हम सिर्फ उस चेन को अपनी तरफ से तोड़ रहे हैं ताकि हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी आए, हमारे एनवायरनमेंट में भी पॉजिटिविटी आए। और जैसे ही पॉजिटिविटी बढ़ती है इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग होने लगता है। बहुत आसान है, सबसे आसान है। यदि हम ये 8 मिनट की क्षमा साधना प्रेयर करते हैं तो बहुत आसान है कि हम चीजों को काफी हद तक बैलेंस कर सके। तो पहले चरण में जैसे मैंने बताया कि हम उनको माफ करेंगे, तो उसमें ये जो है गाइडेड है, हमारे सर के साथ में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें हम इस तरह से दोनों हाथ नमस्कार पोजीशन में रखेंगे अपने हार्ट चक्रा पे। ये प्यार का सेंटर है और हम अपने प्यार के साथ में उनको माफ करेंगे। फिर वो बोलेंगे आत्मा नमस्ते, मैं आपके अंदर के देवी तत्व को प्रणाम करते हैं। फिर उसके साथ में एक बहुत पावरफुल मंत्र वो बोलेंगे, ओम
शांति शांति होम। हम उस मंत्र को अल्टरनेट चांट करना, एक बार सर करेंगे, एक उसके बाद में हम करेंगे। फिर ये ओम शांति शांति मंत्र अपने आप में इतना पावरफुल है कि वैसे ही हमारे सिस्टम में पॉजिटिविटी जो है, जैसे वाइब्रेशन जो है उसका संचार होने लगेगा। उसके बाद में ओम शांति शांति हम करने के बाद में हम वो बोलेंगे कि मैं आपको रिलीज करता हूँ, और फिर रिलीज करने के बाद हम कट करते हैं। क्या कट कर रहे हैं? जो नेगेटिविटी दो जनों के बीच में या तनाव की ऊर्जा है, हम उसको कट कर रहे हैं। फिर दूसरे चरण में क्या होता है कि कई बार हमने भी, हमारे द्वारा भी किसी को तकलीफ पहुंची होगी, या हो सकता है वो सेम व्यक्ति हैं कि हमने उन हर्ट किया होगा या जाने अनजाने में, तो हम इसी तरह उनको से माफी मांगते हैं। आत्मा नमस्ते, हम आपके अंदर के देवी तत्व को प्रणाम करते हैं, जो भी गलतियां मुझसे हुई है मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। फिर हम बहुत ही पावरफुल वही मंत्र हम फिर से उच्चारण करेंगे, अल्टरनेट ओम शांति शांति ओम। अगेन हम जो वो नेगेटिविटी की जो कॉर्ड है, जो एनर्जी है, उसको फिर से कट करेंगे। तीसरा चरण में हम क्या करते हैं? तीसरे चरण में हम अपने आप को, जब तीसरे चरण आता है तब हम अपने दोनों हाथ इस तरह से नीचे रखते हैं और हम अपने आप को जो है वह माफ करते हैं। कई बार हमसे भी गलतियां होती है, उसका कई बार हमको गिल्ट होता है, पश्चाताप होता है, फिर हम उसके बारे में बहुत सोचते रहते हैं, तो उससे भी तो एनर्जी जाती है ना। तो हम अपने आप को माफ करते हैं ओम शांति शांति ओम पावरफुल मंत्रा से, ताकि हम अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सके और हैप्पी कर सके। तो चलिए, आप लोग सब तैयार हैं? रिलैक्स होके बैठ जाइए, कनेक्ट टू अपर पैलेट, अपनी जुबान को तालू में लगाइए और बहुत आराम से बैठ के इस प्रार्थना को हम सभी एंजॉय करते हैं। आत्मा नमस्ते। हम क्षमा का साधना करेंगे, फॉरगिवनेस साधना। माफ करने से हमें शांति मिलता है, माफ करने से अपना भला होता है, इसलिए ये बुद्धिमानता है। प्यार और करुणा दिखाने से उपचार होता है अपना ही, क्षमा करने से भी अपना उपचार होता है। माफ करने से हमें कर्मा प्राप्त होता है कि हमें भी माफ किया जाए। हम दूसरों की गलतियों को अगर माफ करते हैं तो हमारा गलतियां भी माफ किया जा सकता है। ये करके आप शांत महसूस कर सकते हैं। ये हम रोज करना चाहिए। कल्पना कीजिए, जो आपको तंग किए हैं या तकलीफ दिए हैं, किसी न किसी तरह से तकलीफ पहुंचाए हैं, क्या आप समझते कि कोई आपको तकलीफ पहुंचाया है? उनको माफ कीजिए। हर स्थिति में अंदर से हमको माफ करना ही चाहिए। कुछ स्थितियों में हमको लेकिन हर स्थिति में माफ तो करना ही है, अपना ही भले के लिए। उन सबको आपके सामने कल्पना कीजिए जो आपको तकलीफ पहुंचाए हैं। अपने दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लगाइए, उनको कल्पना कीजिए। फिर से बोले, आत्मा नमस्ते। मैं आपका अंदर का सबका दैवी तत्व को प्रणाम करता हूं, ग्रहण करता हूं। हम सब परब्रह्मन के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। आध्यात्मिक उद्धार होने में जीवन काल में काफी प्रयास करना पड़ता है। इसके दौरान कुछ गलतियां होती हैं। आपकी गलतियों को मैं पूर्ण रूप से माफ करता हूं। आपका भला हो, मार्गदर्शन हो, आप शांति से जाइए। दोनों हाथ आशीर्वाद मुद्रा में लगाइए, आपके सामने उनको कल्पना कीजिए, उनको आशीर्वाद देते रहिए, वो शांति से बढ़ दिया जाए। मेरे साथ दोहराइए, ओम शांति 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 ओम। 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 शांति 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 ओम
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। बोले शांति से जाइए, गो इन पीस। और निर्मुक्त हो उनसे, खट खट खट। अब उन सबको याद कीजिए जो आपसे तंग हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कष्ट पहुंचाए, आपने भी बदले में उनको कष्ट पहुंचाए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके कारण तकलीफ में गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो जानते हैं आपने उनको तकलीफ पहुंचाया है लेकिन आप भूल गए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जाने अनजाने में अपने से तकलीफ पाए हैं। ये सब लोगों से हम माफी मांगते हैं। हाथ नमस्कार मुद्रा में रखिए, उन सबको कल्पना कीजिए जो भी है। बोलिए आत्मा नमस्ते, आई सल्यूट द डिविनिटी इन यू। आपके अंदर का दैवी तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। आध्यात्मिक प्रयास में समय लगता है, प्रयास लगता है, गलतियां होते हैं, सब गलतियां करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार बड़ी गलती भी करते हैं। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। मैं कोशिश करूंगा कि एक गलती दोबारा ना हो। आपका भला हो, मार्गदर्शन हो, आपका उपचार हो। आप शांति से जाइए, गो इन पीस। हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लगाइए, आपके सामने उनको कल्पना कीजिए, उनका भला हो, उनको आशीर्वाद मिलते रहे, उनके अंदर शांति भर दिया जाए। मेरे साथ दोहराइए, ओम शांति शांति शांति। 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 निर्मुक्त हो उनसे, खट खट खट। आप अपने हाथ नीचे रखिए। हम अपने आप को माफ करते हैं। सबसे गलतियां होती हैं, हम भी गलतियां करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे बारे में अच्छे ख्याल होने के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को माफ करें ताकि हम शांत से रह सके। गलतियों को हम सुधारते हैं, फिर से ये नहीं करेंगे। कल्पना कीजिए जो गलतियां हम किए हैं वो फिर से नहीं दोहराएंगे। हमारे अंदर में शांति भर दिया जाए। ओम शांति शांति शांति। 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 ओम
शांति शांति शांति। महसूस करिए, शांति में रहिए। ये हम रोज करें अपने अंदर शांति बनाए रखने के लिए, अपना स्वस्थता बनाए रखने के लिए। धन्यवाद। अभी हमने ये बहुत ही पावरफुल क्षमा साधना किया। आप इसका नियमित अभ्यास करें और मैं आपको बता सकती हूँ कि इसके नियमित अभ्यास से आपको काफी अंदर में शांति महसूस होगी और आपके परिवार में और आपके वातावरण में और आपके अंदरूनी शांति आप महसूस कर पाएंगे और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हमारे वातावरण में फैलेगी। धन्यवाद। आत्मा नमस्ते। थैंक यू मैम, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रेयर करवाई। लोग कमेंट आ रहे हैं इसमें कि क्षमा तो पता था पर ऐसी इस तरीके से क्षमा करना है, ये ऐसी टेक्निक नहीं पता थी और बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत ही लाइट लग रहा है, ऐसे कुछ इसमें कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। योग प्राण विद्या में जो टेक्निक्स हैं उसमें हम फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, फॉरगिवनेस प्रेयर, उसके अलावा हीलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है हीलिंग, जिसे हम नो टच नो ड्रग थेरेपी कहते हैं। ये जो थेरेपी है इसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूंगी कि हमारे जो शरीर होता है, जो जिसको हम विजिबल फिजिकल बॉडी है, ये बॉडी जो है जो शरीर दिखता है, उसके अलावा एक हमारा और शरीर होता है जो नहीं दिखाई देता है, जिसे हम एनर्जी बॉडी कहते हैं, ऊर्जा शरीर कहते हैं। जो ऊर्जा शरीर होता है वो सामान्य आंखों से नहीं देखा जाता है, लेकिन ये हमारी फिजिकल बॉडी का रिप्लिका होता है और चूंकि वो ऊर्जा है इसीलिए हम उसको महसूस कर सकते हैं। इसको हम ऐसे बता सकते हैं, जैसे अगर कई बार सुबह सुबह हमें ऐसा लगता है कि हरारत लग रही है, शरीर में दर्द सा हो रहा है, बुखार सा लग रहा है, लेकिन हम थर्मामीटर लगाते हैं तो टेम्परेचर नहीं आता है, लेकिन शाम होते होते तक हमको बुखार फिर लगने लगता है और हम थर्मामीटर लगाते हैं तो बॉडी में टेम्परेचर दिखाई देता है। देखिए, टेम्परेचर शाम को दिखाई दे रहा है और सुबह से हमें महसूस हो रहा था कि फीवरिश लग रहा है, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि ये कहाँ महसूस हो रहा था। तो हम बीमारी जो है वो एनर्जी बॉडी में पहले आती है, बॉडी। बहुत बार एक पर्सन पेशेंट जो है वो तकलीफ महसूस करता है, लेकिन यदि वो एमआरआई करवाता है, सिटी स्कैन करवाता है या ब्लड टेस्ट होते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है, पर उसको महसूस होता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारे ऊर्जा शरीर में बीमारी पहले आती है, फिर वो फिजिकलाइज होती है। किसी भी पर्सन को कैंसर एक दिन में नहीं आता है। तो इस सिस्टम में जो ऊर्जा शरीर होता है उसकी हम हीलिंग करते हैं। हीलिंग से हमारी रिकवरी फास्ट होती है और ये हमारे शरीर की ठीक होने की क्षमता को बढ़ाता है। प्रेजेंट सिचुएशन में हमको इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है और उसमें हीलिंग बहुत हेल्पफुल रहती है। ये पेशेंट की रिकवरी को फास्ट करता है और हीलिंग जो है ये नो टच नो ड्रग थेरेपी है। हम रायपुर में बैठकर मुंबई में बैठे हुए पर्सन का भी इलाज कर सकते हैं, कनाडा में बैठे हुए व्यक्ति का भी इलाज कर सकते हैं। तो इस थेरेपी में योग प्राण विद्या की जो तकनीकें हैं वो कोविड-19 में कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं, इस जानकारी के लिए हम फिर से विशाखा मैम को आमंत्रित करते हैं। मैम एक बार फिर से इस पर आपको जानकारी देंगी। जी, तो अभी आपने कुछ प्रैक्टिसेस किए, क्षमा साधना किया, कुछ प्राणायाम किया। आपको उपचार पद्धति, वाईपीवी उपचार पद्धति क्या है योग प्राण विद्या, इसके बारे भी आप समझिए। अभी प्राणा क्या होता है, कैसे हम उसको प्राणा के को यूज करके कैसे हम उपचार कर सकते हैं। तो जो उपचार पद्धति है ये केवल शारीरिक स्तर पर नहीं होता है, ये शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक
बल्कि बोला जाए तीनों स्तर पर होता है। अब आप देखिए, ज्यादातर जो बीमारियां होती है ये मनोवैज्ञानिक होती है। ज्यादातर किसी को एक्सीडेंट हो गया ये अलग बात है, लेकिन ज्यादातर जितनी बीमारियां होती है 90% आप समझिए साइकोसोमैटिक होती है। यदि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो साइकोसोमैटिक मतलब क्या हुआ कि नॉट जस्ट फिजिकल, इट इज इमोशनल एज वेल एज मेंटल, यानी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आता है। तो जो योग प्राण विद्या सिस्टम है, इसमें जब हम किसी को उपचार देते हैं, हम बकायदा उसको पहले मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट को हम हैंडल करते हैं, उसके बाद हम उसके शारीरिक एस्पेक्ट पे आते हैं, उसको क्या फिजिकल प्रॉब्लम है। क्योंकि यदि आप केवल फिजिकली उनको टैकल करोगे तो हल नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को अस्थमा है, तो आपने फिजिकली तो टैकल किया, कुछ देर के लिए आराम मिला, लेकिन जड़ क्या है? अस्थमा इज कम्प्लीटली साइकोसोमैटिक। यदि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आर्थराइटिस इज साइकोसोमैटिक। मैं आपको समझा रही हूँ कि साइकोसोमैटिक बीमारियां क्या होती है, कैसे हम योग प्राण विद्या के द्वारा उनको हम मदद कर सकते हैं। आप भी सीख के हीलिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको बाहर से मदद लेना है, आप सभी हीलर बन सकते हैं। हीलर बनने के लिए केवल इच्छुक होना चाहिए कि मुझे भी कुछ सेवा करना है, अच्छा करना है। केवल अच्छा सोचने से अच्छा करना मतलब ज्यादा बेहतरीन होता है, और करने से ही कुछ चेंजेस आते हैं। आप खुद के लिए भी, अपने परिवार वालों के लिए और सभी के लिए कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि हम ये साइकोसोमैटिक एलिमेंट्स के लिए भी हम हीलिंग देते हैं। तो हम कोविड-19 के ऊपर अब थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे अभी कोविड-19 के पेशेंट्स को हीलिंग दिया है। हमारे बहुत सारे हीलर्स, टीम ऑफ हीलर्स बोला जाए तो, एंड सभी मिलकर पेशेंट्स को हीलिंग दे रहे हैं, रात में, दिन में, जैसे कभी भी केसेस आ जाते हैं हम रेडी रहते हैं। और हम ये बिल्कुल अपनी तरफ से हम हमारे लिए ये सेवा के तौर पर हम लोगों को हीलिंग दे रहे हैं। और आपको अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर मैं करती हूँ। हम सब जानते हैं कि जो कोविड-19 के सिम्टम्स होते हैं, लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड होता है इसमें। तो हमारा लंग्स, हमारा थ्रोट, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, किसी को स्मेल चला जाता है, किसी का टेस्ट चला जाता है, ये सारे फिजिकल सिम्टम्स हैं जो कि बहुत चर्चा में है। लेकिन जिस पर बीतती है, अगर आप उनसे बात करें, बहुत ज्यादा डरे हुए और सहमे हुए रहते हैं लोग, बहुत ज्यादा डाउट में रहते हैं, और कि वो ठीक हो पाएंगे कि नहीं, क्या वो सही होकर बस घर पहुंच पाएंगे, या उनके जो घर वाले होते हैं बहुत चिंतित रहते हैं कि जो हमारे फैमिली मेंबर्स जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ठीक से बात, शायद सबको ये सुविधा उपलब्ध नहीं है कि हर समय बात कर पाए। बहुत सारे लोग ऑक्सीजन में रहते हैं, कुछ वेंटिलेटर्स में रहते हैं, कुछ बात कर पाते हैं। तो इस तरह से है। जो पेशेंट्स ट्रॉमा में रहते हैं, अगर हम खाली फिजिकल लेवल में उनको हीलिंग देंगे, उनको ठीक होने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। हम उनको डेफिनेटली साइकोलॉजिकल लेवल में भी हैंडल करते हैं। सबसे पहले बल्कि बोला जाए तो हम उनको साइकोलॉजिकल लेवल में उपचार देते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं उनको जो भी फिजिकल सिम्टम्स है, इसके अलावा उनके इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। और ये तो पेशेंट है जो कि इससे पीड़ित है। इसके अलावा जो उनके घर वाले हैं, भले ही उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, वो नेगेटिव है, कोविड-19 से उनको कोई पीड़ित भी नहीं है, लेकिन जो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उसका क्या? और जिन पेशेंट्स में एक्चुअली निराशहीन हो गए हैं, डिप्रेशन में जैसे चले जाते हैं, उनको ठीक होने में बहुत वक्त लगता है। कई बार ऐसे होता है कि एक परिवार से 3-4 लोग जो गए थे, उसमें से शायद एक कभी वापस आया ही नहीं आ पाया। ये अगर उनको पता चल जाता है, या वापस आके भी उनको जब इस बात की जानकारी होती है, इट इज लाइक अ सेटबैक, क्योंकि जो गया पता भी नहीं था कि शायद वो जाने वाला है। सब कुछ बहुत अचानक से होता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए हमारे पास। मैं 1-2 केसेस आपके साथ शेयर करती हूँ
तो एक केस था जिसमें कि 2 ब्रदर्स थे एंड काफी दिनों से वो हॉस्पिटलाइज थे, बहुत हाई फीवर दोनों को। और वो किस हालात में गए थे, उनके फादर का डेथ हुआ था और 3 दिन बाद ही उनका रिपोर्ट आया और वो दे हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। अब ऐसे में वो आखिरी उनका जो भी कुछ उनको जो भी राइट्स रिचुअल्स परफॉर्म करने होते हैं उसका भी वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में थे। इस बात का भी अंदर उनको बहुत ज्यादा गम था। दूसरा, वो इतना हाई फीवर से गुजर रहे थे कि 102, 103 10 दिन बाद ये केस हमारे पास आया था, तब ऑलरेडी वो 102, 103 चल रहा था। तो ऐसे में हमने उनकी हीलिंग शुरू की। उसके बाद में थोड़ा 2 दिन बाद में फीवर 199 ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट हुआ कि रिपोर्ट नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि ये खत्म हुआ फिर ये हुआ, ये खत्म हुआ फिर ये हुआ। अब अगला चीज है कि एक बार रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो वो फिर से वापस सेटबैक हो गया, फिर से वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गए। फिर मैंने क्योंकि वो थोड़ा सा सुधर गए थे, अभी बुखार उनका बंद हो गया था, बुखार नहीं आ रहा था। मैंने सोचा ठीक है, हम इनको कुछ प्रैक्टिस करा सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, शायद इससे उनको मदद मिलेगी। वीडियो कॉल किया उनसे, फोन में बात किया, उनको मैंने ब्रीदिंग सिखाया। एक्चुअली सारे हीलर्स अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और जो जिससे संपर्क कर पा रहा है उनको वीडियो कॉल करके वो आमने सामने, जैसे मैं और आप बैठे हैं, हम एक दूसरे को बता सकते हैं और सिखा सकते हैं। फिर उनको ब्रीदिंग बताया गया और उनको क्षमा साधना, 2 चीजों की जो आपने एक्चुअली आज आपने भी प्रैक्टिस करी, हम यही 2 चीजों की प्रैक्टिस हमने उनको बकायदा कराई और उनका कॉन्फिडेंस लेवल उससे हाई हुआ, क्योंकि उनको थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। क्योंकि उस चिंता के मारे बीपी हाई हो रहा था, पल्स हाई हो रहा था। ये बहुत नॉर्मल है। जो पेशेंट्स वापस आ जाते हैं चिंता में रहते हैं, जैसे कि परिवार का एक बंदा वापस आ गया है, बाकी 2-3 अभी हॉस्पिटलाइज्ड है या एक जन अभी हॉस्पिटल में है, तो वो सोच के इतनी ज्यादा चिंता में चले जाते हैं, इतना ज्यादा उनका ग्रीफ होता है, इतना ज्यादा उनका वरीज होते हैं, फियर होता है कि उनका पल्स और बीपी 2 चीजें, एंड सडनली शुगर भी हाई हो जाता है, इस तरह से होता है। तो जब हमने उनको ये प्रैक्टिस कराया, उनको अच्छा लगा, उसी वक्त अच्छा लगा। फिर उनको मैंने बोला कि आप, ये हमारा फ्री ऐप है जो कि प्ले स्टोर में और आई स्टोर में इजीली अवेलेबल है, आप उसको प्रैक्टिस करें डाउनलोड करके, और बाकायदा वो लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि फीडबैक आता है। हम उनके साथ टच में रहते हैं, हम एकदम से हीलिंग नहीं छोड़ते हैं। रिपोर्ट नेगेटिव भी हो जाता है और अगर वो थोड़ा सा सही भी हो जाते हैं, उसके बाद में हम उनके साथ टच में रहते हैं और थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाते हैं, तब हम डिसकंटिन्यू करते हैं, सो दैट वो नॉर्मल हो जाते हैं। सो और हम उनको ऐसा बोलते हैं कि आप इसको रेगुलर वे में प्रैक्टिस करो। सारे घर के परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं, सबको हम ये बोलते हैं आप लोग सभी मिलके प्रैक्टिस करो। तो अगर आपको कुछ नहीं भी है तो भी आप प्रैक्टिस करिए। ऑलरेडी आपने ब्रीदिंग आज प्रैक्टिस करी है, आपको पता है जब आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं आपका श्वास जो है स्लो डाउन हो जाता है, आप नियंत्रण में आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे योग के बारे में, हमने शुरुआत वहीं से किया था। तो जीवात्मा का आत्मा से कैसे एकत्व हासिल हो, तो बेसिकली अगर बोला जाए, आत्मा जो है वो क्या होता है, ड्राइवर होता है। आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो ड्राइव करते हैं, लेकिन गाड़ी क्या है, एक व्हीकल है ना, एक व्हीकल है, और आप क्या है, उसके ड्राइवर है। सो उसी तरह से जो आपका आत्मा है ना, ये ड्राइवर है, और आपका ये जो शरीर है, आपकी भावनाएं हैं, आपका सोच विचार है, ये क्या है, ये व्हीकल है। ऐसा बोला जाए कि एक नहीं 2-3 व्हीकल है आपके। सो ड्राइवर जो होता है गाड़ी को कंट्रोल में रखता है ना। उसको अभी ब्रेक मारना है, अभी एक्सेलरेटर, अभी उसको एकदम से ब्रेक मार, वो स्टॉप करो, क्या करना है, ये ड्राइवर कंट्रोल करता है। तो आप बताइए, आप तो एक आत्मा है। सो आप अपने शरीरों को आप कंट्रोल में रखे हैं, या ये शरीर आपको कंट्रोल में रखे हैं? तो रिवर्स नहीं होना चाहिए। एक्चुअली आप ड्राइवर सीट में बैठे हैं, आप तो आत्मा है। सो आपके कंट्रोल में होना चाहिए ये फिजिकल बॉडी, आपकी भावनाएं, इमोशंस, और आपका सोच और विचार।
और फिर आप देखिए लाइफ कितना स्मूथ और अच्छा होता है। हम जब तक भी जीवित हैं, हम इन सबको कंट्रोल में रखकर जिए। आप फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, तीनों लेवल में जब आप फिट रहेंगे, तभी आप एक होलसम जीवन जी रहे हैं। यही है योग प्राण विद्या। और आप ये सारे टेक्निक्स को बिल्कुल योग प्राण विद्या जो हमारा ऐप है, YPV साधना ऐप, आप उसको डाउनलोड करिए। विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है, ये बिल्कुल फ्री है। इसी में प्राणायाम भी है जो आपने प्रैक्टिस किया, क्षमा साधना भी है जो आपने प्रैक्टिस किया। इसके अलावा बहुत अच्छा छोटा सा एक ध्यान है जिससे आप ध्यान मतलब मेडिटेशन है, जिससे आपका अवेयरनेस बढ़ेगा और जिससे आपका धारणा, कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा और जिससे आप दुनिया के सारे लोगों को आप ब्लेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर्मा जनरेट कर सकते हैं। यही कर्म योग भी होगा, यही भक्ति योग है और यही कर्म योग भी है। तो आप बिल्कुल उसको डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए और नियंत्रण में रखिए। अपने सारे शरीर को नियंत्रण में रखिए, ये आपके हाथ में है। और योग प्राण विद्या जरूर सीखिए, क्योंकि आप सीख कर खुद को भी उपचार दे सकते हैं। आसपास में आपके जो घर वाले जो जितने लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप सबको उपचार दे सकते हैं। चाहे तो जो आपसे मदद मांगे आप उनको भी मदद दे सकते हैं। जाने के पहले हम थोड़ा सा ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे। ये जो क्राइसिस का वक्त चल रहा है कोविड-19 को लेकर, तो हम ब्लेस करते हैं कि विश्व भर में जो ये क्राइसिस है, ये क्राइसिस की जो परिस्थिति है वो शीघ्र से शीघ्र नियंत्रण में आए और जितने भी पेशेंट्स हैं जो पीड़ित हैं इससे, या जिनके जो पीड़ित है और उनके घर वालों को, सभी को हम आशीर्वाद देते हैं और जल्दी से जल्दी उनका डायग्नोसिस और सही डायग्नोसिस हो, सही ट्रीटमेंट उन तक पहुंचे, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होए और जल्दी से जल्दी कोविड-19 कंट्रोल में आए। आप लोग सभी जहां जहां भी बैठे हुए हैं, जिस भी देश में, जिस भी प्रदेश में, जिस भी शहर में बैठे हैं, सभी को हम ब्लेस करते हैं और कोविड-19 उन सारे जगहों में कंट्रोल में आए। और आज इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर हम ब्लेस करते हैं कि विश्व भर में लोग योगा के महत्व को समझें, योगा के मतलब को सही तौर पर समझें। योगा एज योगासन, योगा एज प्राणायाम ब्रीदिंग, योगा एज यम एंड नियमा यानी कि चरित्र निर्माण करना, योगा एज मेडिटेशन। सही मायने में इसको समझें, खुद भी इसकी प्रैक्टिस करें, सारे घर वालों को भी इसकी प्रैक्टिस कराएं और एक अच्छा सा वातावरण बनेगा जब हम सब मिलके ऐसा कर सके। तो हमारी जीवन शैली में एक चेंज आएगा और हमारा वातावरण बदलेगा, ये दुनिया बदलेगी जब ऐसा होगा। तो ऐसा ही हम ब्लेस करते हैं। और जाने के पहले राष्ट्रीय सिंधी मंच को हम ब्लेस करते हैं कि जो अच्छा काम वो ऑलरेडी कर रहे थे वो और अच्छा काम करे, उनके सारे प्रोजेक्ट्स को सफलता मिले और हमें जो उन्होंने मौका दिया उसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत ही सुंदर जानकारी के लिए। आपकी जानकारी में जो ऐप के बारे में बताया गया है, इस ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए और अपनी इम्यूनिटी आप खुद घर बैठे बढ़ा सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी आप लोग स्वयं लीजिए। हमारे मेंटर श्री NJ रेड्डी सर कहते हैं कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप सबसे पहले अपनी फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखिए। आप पहले अपना ध्यान रखिए। जब हम ठीक रहेंगे, हम खुश रहेंगे, तो हम अपने परिवार के लोगों का ध्यान रख सकेंगे। हम वातावरण को अच्छा रख सकते हैं अगर हम खुश हैं तो इसलिए हमें पहले अपना ध्यान रखना है, अपनी सेहत अच्छी रखनी है ताकि हम अपनों का ध्यान रख सकें और दूसरों का भी ध्यान रख सकें। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी राष्ट्रीय सिंधी मंच की संस्थापक श्री रोशन उत्तानी जी और आनंद सबदाड़ी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष DK कुकरेजा जी और डॉक्टर सपना कुकरेजा जो कि महासचिव हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश से हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में हमें विशेष सहयोग दिया। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ
आप लोगों ने जो ये सामाजिक कार्य किया है और लोगों को मदद करने की कोशिश की है योग प्राण विद्या के माध्यम से, आप लोग का ये कार्य सफल हो। हमारी जितनी भी तकनीकें हैं उन सब का अभ्यास हम ऑनलाइन करवाते हैं। हीलिंग के लिए हम सर्टिफिकेट कोर्स और वर्कशॉप कंडक्ट करवाते हैं। आप इसके लिए हमसे इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9893244411, 9893244411, 9993523000, 9993523000, 7389720600। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप ऐप की प्रैक्टिसेस या कुछ भी जानकारी चाहते हैं, या कोई कोविड पेशेंट आप लोगों के संपर्क में है या जान पहचान में है और जिन्हें हीलिंग की जरूरत है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। हम यहाँ अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जय झूलेलाल, नमस्ते।